Should we start? Any doubts to anyone? I will wait for 1 more minute, then I will start. So I'm starting with the lecture. Hello. Yes, sir. So we have completed with courses on horizontal and vertical surfaces. Horizontal and vertical submerged surfaces. So these were horizontal and vertical surfaces. So these are the examples. So this is the horizontal surface that is submerged, and these are the vertical surfaces that are submerged. So now we will be dealing with a more general case in which the surface is neither horizontal nor it is vertical, but it can have any arbitrary orientation. So these are the physical examples. तो ये physical examples हैं. इसमें fluid इसके ऊपर है, इस surface के, और इसमें fluid इस surface के नीचे है. So these both are treated in a similar fashion. So before I come to this vertical surface, let me know if I had something like this. Quickly, say I had a container in which the fluid was up till this point. So this was the free surface, and say this was the surface on which I need to find out the force. So this is the horizontal surface. So this is something like gate. So you have a hinge here and you want to close this so that this doesn't open up. And fluid is filled up till this. So this is H1. This is H2. So how will you treat this horizontal surface? In this case, the surface is not submerged, but this surface is above the liquid. So यहाँ पे liquid है. So here is the liquid, and the surface is above this liquid. How will you solve this kind of problem? This is the surface. This is horizontal surface, but now the horizontal surface is not below the liquid, but above the liquid. Will the analysis be same or it will be different? Analysis same होगा कि different होगा इस case में? सेम होगा सर, जस्ट फोर्सेस की डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई है जो सबमर्ज्ड केसेस में होती थी. तो इसमें कहाँ किस डायरेक्शन में मैं फोर्स PATM downwards and water pressure due to the water is outwards. So this is the force. This is the force that is acting on this plate. No disturbance, please. Sir, kindly mute everyone. I am muting all. So this is a surface on which the pressure force will be acting from down direction. So what will be the value if I ask you? What will be the resultant force? Rho G H1. Minus Rho G ATM. H1 into A. Rho G H1 into A. Yes, sir. So please remember, this is also equivalent. This system is also equivalent if I assume a fictitious fluid lying above this. Are you getting the same answer if you assume this green fictitious fluid of density rho? हाँ जी, clear है?
Yes, sir. So this is what you learned in hydrostatic paradox also, अगर आपको याद हो. So this is what you can treat this as fictitious fluid acting from above, although fluid is not there. So by same, you are getting the same results by the two analysis. Whether you assume it from bottom side या आप assume कर लें top side. हाँ जी, clear है? Yes, sir. So now I am taking with the inclined surfaces. In inclined surface also, either the surface can be below the water or liquid, और क्या हो सकता है surface water के above हो. And please remember the analysis will remain the same, and we will see how. तो ये हमने एक ले लिया arbitrary inclined surface है. Arbitrary का मतलब क्या है? इसकी shape कुछ भी हो सकती है. इस केस में क्या शेप है प्लेन की? A rectangular shape. Yes, sir. But it could be any shape. So this analysis is general enough to account for all the shapes. तो अब इसके अंदर आपने ध्यान रखना है, मैंने y से रिप्रेजेंट किए हैं वर्टिकल डिस्टेंसेस जैसे मैं पहले कर रहा था. तो आई हैव ट्राई टू मेंटेन कंसिस्टेंसी. तो हॉरिजॉन्टल के केस में, वर्टिकल के केस में, हर केस में आई हैव अज्यूम्ड vertical distances as y. So in case of inclined also I am assuming it y, और along the plane मैं इसको L represent कर रहा हूं, और इसके depth direction में I am assuming k. And please remember C subscript represents centroid and P represents center of pressure. तो हमने एक फ्री सरफेस से एक हमने ये मान लिया, दिस इज द इंक्लाइंड सरफेस, दिस इज एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द फ्री सरफेस. तो यहां से स्टार्ट हो रहा है ये. सो दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द फ्री सरफेस, और वर्टिकल डिस्टेंस ये. यानी क्लियर है? So when I have this inclined surface submerged in the liquid, so what should be acting on the right hand side of this surface? यहां पे क्या होगा? Here say there is water. What will be here? Air. Air. So that's why this is a surface. And P atmospheric is acting here as well. So this is P atmospheric, and here also there will be P atmospheric perpendicular to the, perpendicular to what? This plane. So this is also P atmospheric. So at any location y, if you want to find out pressure, then what should be the pressure? P atmospheric plus rho gh minus P atmospheric. So P atmospheric gets cancelled out. That's why I am only treating the gauge pressures here. अगर यहाँ पे air ना होती, then I wouldn't have got this term, तो मुझे P atmospheric भी include करना पड़ता. So that should be kept in mind. So whenever the analysis there, you should always see whether on the other side there is some air or some other fluid. या example मैं बोलूं, say I have one example. In this case, say instead of air, see this physical example. In this case, atmospheric pressure is acting in this direction, and atmospheric pressure is also acting in this direction. So instead of this kind of configuration, say this was covered with some
other kind of fluid, this plate itself was covered with some other kind of fluid which was having density rho, say F, and so this was height H1. So how will you go about this? How will you go about this? So this height is, say, H2. So you want to find out, and say this is height H1. So this is height H1. So how will you solve this question? And is it clear? The question is clear to you? Yes, sir. So how will you solve it? P atmospheric is acting in this direction. So at this location, the pressure will be what? P atmospheric plus rho g H2. But what else is acting at this location? So दूसरे फ्लोट के बारे में लग रहा The है weight of the fluid itself. So P atmospheric must be acting on this as well. yes sir And also this H1 yes sir minus rho fluid G H1. So please remember, you need to account for all the pressures if you have such complicated kind of a problem. So that is the sole point I am making. चलिए सर हाँ जी. सर एक बार ये बता देंगे कि माइनस क्यों किया है पीएटीएम क्या कह रहे हैं? सर माइनस किया है हमने पी एटमॉस्फेयर हाँ. तो वो इसलिए सर कि वो लेकिन डायरेक्शन जो यहाँ पे पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर था वो इसको लिक्विड को पुश कर रहा था. यस सर तो वो लिक्विड का पुश से इस गेट के ऊपर किस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है? नॉर्मल डायरेक्शन अपवर्ड्स. यस सर और इस H2 की वजह से किस डायरेक्शन में लग रही है? अपवर्ड्स. हाँ जी, क्लियर है? यस सर और जो ये रेड कॉलम है इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर किस डायरेक्शन में लग रहा है? सर वो प्रेस कर रहा है उस पे वो लिक्विड प्रेस कर रहा है. और ये Yes, जो रोजी H1 है ये भी इसको प्रेस कर रहा है. तो इन दोनों Yes, की sir. डायरेक्शंस ऑपोजिट है इन दोनों से. ठीक है सर हाँ जी, क्लियर है? यस सर So this is the inclined plane and we have, our task is to find out the pressure forces on this inclined surface. So as we did for horizontal and vertical surfaces, the analysis follows the same steps. So what is the first step? To find out, you take a differentially small element at some distance from the free surface. So I am again taking a differential small element at some distance y from the free surface. I want to compute dF. This is equal to PdA. Now what is the pressure at this location? You know that it solely depends on y. So what should be the pressure? Rho. P atmosphere plus rho G. Because P atmosphere is acting here as well, and P atmosphere is acting here as well, so they are cancelling out. Rho G1 So you have only Pg y y into dA. Now what is y? If this is the length L, so I'm marking this length as L. So what should be this y equal to in terms of L? L by 2. L sin theta L sine theta. So this is L sine theta. So I have rho G L sine theta into dA. So this is the dF force.
if you take the integral of this, you get the resultant force. And that comes out to be rho g, what should I, and there was what? Sine theta. These are constants because it is incompressible fluid with constant acceleration due to gravity, and the inclined plane is not changing its angle with respect to the free surface. So I am left with L dA. Now what is L dA integral equal to? Volume. L dA. So if I mark this as L dA integral upon dA integral, what should be this equal to? LC. The way you had for centroid in vertical direction, you can have corresponding centroid in this coordinate system. जो ये वाला coordinate system है, ये coordinate system में आपको अगर centroid find out करनी है तो इसमें एक ये एक्सिस है और एक ये एक्सिस है. पहले सिस्टम में एक ये एक्सिस होती थी और एक नीचे एक्सिस होती थी. तो उसमें आप करते थे YDA इंटीग्रल, DA इंटीग्रल was YC. Likewise, if you take this direction, so LDA integral upon DA integral will be equal to LC. LC means location of the centroid in this direction. So this is the location of centroid. So you are able to see this is the centroid in the auxiliary top view. So do you understand this auxiliary top view? Any doubts? So LDA, हाँ जी बताइए. सर आप ये तो कहना चाह रहे हैं कि जो सेंट्रॉइड है उसका वर्टिकल डिस्टेंस लेना है फ्री सरफेस. हाँ, सेंट्रॉइड है जो उसका वर्टिकल डिस्टेंस लेना है फ्री सरफेस से. वर्टिकल डिस्टेंस नहीं लेना हम, क्योंकि हम इस एक्सिस के अबाउट ले रहे हैं ना, O के एक्सिस से ले रहे हैं डिस्टेंस, क्योंकि हमने Y को किस में कन्वर्ट कर दिया? L sin थीटा में. तो L क्या डिस्टेंस है? ये वाला. तो हमने LDA इंटीग्रल अपॉन DA इंटीग्रल को LC लिख दिया. LC का मतलब हुआ डिस्टेंस ऑफ द सेंट्रॉइड फ्रॉम दिस एक्सिस. This is not free surface. अगर मैं YC लेता, ये YC जो है, ये YC फ्री सरफेस से डिस्टेंस है. अब मैंने एक आर्बिट्री एक्सिस ले ली, वो इसलिए सिर्फ ली है मैंने ताकि मैं इसको ट्रीट कर पाऊं, इसी डायरेक्शन में मैं पता लगा पाऊं कहां पे सेंट्रॉइड एक्ट कर रही है. क्लियर है? अभी भी प्रेशर YC पे ही डिपेंड करेगा. वो सिर्फ L की टर्म्स में लिखा है मैंने. अगर आप ध्यान से देखो, मैंने सिर्फ Y को कन्वर्ट किया L sin थीटा में और कुछ भी नहीं किया मैंने. और LDA को मैंने लिख देना है LC इंटू एरिया. So the force comes out to be rho G LC sin theta A. LC sin theta क्या है? What is LC sin theta? What is LC sin theta? YC. YC. Vertical distance. So you are more or less getting the same expression, but it is more convenient to treat this in terms of LC. हाँ जी, क्लियर है? किसी को कोई डाउट? किसी को कोई भी डाउट प्लीज आस्क मी. So this was the value of the resultant force. और अगर हमें फाइंड आउट अब करना है ये फोर्स किस पॉइंट पे लग रही है, दैट इज वी वांट टू फाइंड आउट द सेंटर ऑफ प्रेशर. दैट इज द पॉइंट एट विच दिस रिजल्टेंट फोर्स is acting. So this is acting at center of pressure, and that center of pressure is little bit below the center of or the centroid. हमने उसको वर्टिकल केस में भी देखा है कि सेंट्रॉइड और सेंटर ऑफ प्रेशर कोइंसाइड नहीं करते वर्टिकल के केस में.
हॉरिजॉन्टल के केस में कोइंसाइड करते हैं, इस केस में नहीं करते। तो इस केस में आप क्या करेंगे? अगेन आई विल अप्लाई द सेम थ्योरम, एंड फॉर योर बेनिफिट आई हैव रिटन डाउन दिस थ्योरम इन वर्ड्स हियर। तो जो कल मैं आपको थ्योरम बोल रहा था उसका एक पर्टिकुलर नेम भी है, दैट इज कॉल्ड वेरिग्नॉन्स थ्योरम और प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। सो आई एम गिविंग यू 30 seconds. Please read this statement and let me know if you have any doubts. So this is similar what we did yesterday. That is df into y integral is equal to resultant force into yp. So that is moment of force, that is moment of this force is equal to the algebraic sum of the moments of components. So these are the components and this is the algebraic sum. So this is actually, you can approximate this by this as well. So this is called Varignon's theorem or principle of moments. So we are equating algebraic sum of moments to the moment due to the resultant force. यानी क्लियर है? किसी को कोई डाउट? Any doubts to anyone? तो इसमें df इंटू क्या करूं? LP, this should be equal to what? Integral df LP should be equal to what? Resultant force. Sorry, I should have, this should be df into L should be equal to resultant force to LP. into LP. And I know df is what? Rho G A LC, or sorry, this is C is not there because this is df force. So L sin theta into L integral into, this should have been dA. Rho G dA into L sin theta into L. So this is the left hand side, this is equal to FR into LP. And likewise यहां पे भी क्या हो जाएगा? Rho G, what will come out? Rho G sin theta will come out and L square dA will be within the integral, and this is equal to FR into LP. Now L square dA integral is the second moment of area, जैसे आपने पहले किया था. तो L square dA किसके बराबर होगा? This will be moment of, second moment of area about which axis? About which axis? About this axis. That is OK. And by parallel axis theorem, what do I know? That if this is a centroidal axis and say this is C dash, then IOK should be equal to ICC dash plus, what should I write down here? What should I write down here? ICC dash plus what? Area into area LC. into distance square. A into what distance? LC. LC square. So this I will substitute. So what do I get finally? I get rho G sin theta into what? ICC plus ALC square is equal to FR into LP. Now what is FR? FR you already know, it is rho G LC sin theta. So this is rho G LC sin theta into LP. So rho G gets cancelled out, rho G sin theta gets cancelled out from both sides. So I am left with LP is equal to LC plus ICC upon
ALC। हाँ जी, क्लियर है? एक बार डेरिवेशन एक्सप्लेन कर दो पूरा, एक बार क्या 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 स्टेप करे हैं आपने हाँ जी। सर, एक बार डेरिवेशन के स्टेप बता दो सर, ऐसे मतलब अच्छा, समराइज कर दो एक डेरिवेशन के बार। स्टेप क्या है? ये इंक्लाइंड समझ आ गया आपके पास? एक इंक्लाइंड सरफेस है, ठीक है, जिसकी एक साइड वाटर है और दूसरी साइड एयर है। ठीक है सर। तो आपने क्या किया, एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया उस प्लेट का, जो फ्रंट व्यू में ऐसे दिख रहा है और साइड व्यू और ऑक्सिलरी टॉप व्यू में ऐसे दिख रहा है, ठीक है। वो डिस्टेंस y पे है फ्री सरफेस से, डिस्टेंस y पे है फ्री सरफेस से, और डिस्टेंस l ठीक है पे सर। है इस एक्सिस से। आपने एक ठीक है। एक्सिस ले ली अलोंग दिस इंक्लाइन और एक एक्सिस ले ली परपेंडिकुलर टू दिस। तो ये l है डिस्टेंस उस ओके। डिफरेंशियली स्मॉल एलिमेंट का इस OK एक्सिस से। तो इस स्मॉल एलिमेंट पे फोर्स हमेशा नॉर्मल लगनी है, क्योंकि हमें पता है प्रेशर फोर्स इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस। तो जो प्रेशर फोर्स होगी वो हमें पता है, अगर कोई इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है और जी वेरी नहीं कर रहा, वो सिर्फ वर्टिकल डेप्थ पे डिपेंड करता है। तो हमें पता चल गया कि भाई जो डीएफ है वो बेसिकली रो जी डी ए इंटू वाई होगा, वेयर वाई इज द वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम द फ्री सरफेस, और y को हम लिख सकते हैं L sin थीटा। तो ये होगी स्मॉल फोर्स। इस फोर्स को आप इंटीग्रल कर सकते हो ताकि रिजल्टेंट फोर्स आ जाए। जब इंटीग्रल करोगे रो जी साइन थीटा बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रल के अंदर L dA रह जाएगा। एंड LdA you can write down, you know that LdA का इंटीग्रल अपॉन dA का इंटीग्रल is LC, that is the location of the centroid from OK axis, this is called LC। तो dA का इंटीग्रल A हो गया, तो LdA इंटीग्रल आ गया A into LC। तो आपके पास क्या आ गया फाइनली, FR becomes equal to रो G sin थीटा LC into area, और LC sin थीटा YC भी है, तो आपके पास रो G YC एरिया, टोटल रिजल्टेंट फोर्स। हाँ जी, क्लियर है? हाँ जी, कोई डाउट? किसी को कोई भी डाउट? अब जब ये फोर्स आ गई तो यू कैन फाइंड आउट यूजिंग वेरिंग-नॉर्म्स थ्योरम। आपने मोमेंट इक्वेट कर दिए कि मोमेंट ऑफ दीज डिफरेंशियल फोर्सेस दे कैन बी इक्वेटेड टू मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, और रिजल्टेंट फोर्स yp पे एक्ट कर रही है, तो आपने दोनों को इक्वेट कर दिया। तो आपने कर दिया df इंटू L इंटीग्रल, दिस इज इक्वल टू रिजल्टेंट फोर्स इंटू LP, और इसको पूरे को करके आपके पास आ गया LP इज इक्वल टू LC प्लस ICC अपॉन ALC। हाँ जी, क्लियर है? So this is the location of the center of pressure from OK axis. अगर आपको फ्री सरफेस से निकालना है तो सिंपल आप क्या करेंगे, आप L को क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे? What can you substitute this as? You know that y is equal to L sin theta. तो उसी हिसाब से आप यहाँ पे पुट कर देंगे, आपके पास yc की टर्म्स में आ जाएगा और सारी चीजें आ जाएगी। तो इसको आपने अगर yc की टर्म्स में लिखना है तो क्या होगा? What should be LP equal to YP, what should I write down, upon sin theta. This should be equal to YC upon sin theta plus ICC upon, अब ICC है ये एक्सिस। So please remember, now this is the CC dash, this is not the CC dash, क्योंकि आप इस एक्सिस से ले रहे हैं, इसके पैरेलल ले रहे हैं, so it is parallel to OK, so that's why it is much better to treat this in terms of LP and LC rather than going for YC and YP। किसी को कोई भी डाउट? हाँ जी, कोई डाउट किसी को भी?
सर जो इंक्लाइन प्लेट होती है सर, इंक्लाइन प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो निकालेंगे हाँ, वो फ्री सरफेस के अबाउट निकालेंगे ना, सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस। लेकिन हम देखो सेंट्रॉइडल है, जैसे एग्जांपल मैं बोलूं, अब मैं आपको एग्जांपल पूछता हूं, मान लो आपके पास रेक्टेंगल, ठीक है, ये इसकी एक्स एक्सिस है, ये इसकी वाई एक्सिस है, मैं पूछूं इसकी सेंट्रोइडल एक्सिस कहां पे है, तो ये होगी इसकी सेंट्रोइडल एक्सिस, यस सर। ठीक है। अब मैं पूछ रहा हूं आपको, मान लो आपके पास कुछ रेक्टेंगल ऐसे होता, ये रेक्टेंगल होता, ये आप होता है एक्स एक्सिस, ये होता वाई एक्सिस, इसकी सेंट्रोइडल एक्सिस कहां होती, कहां होती, कहीं पे ऐसे कर देते आप। हाँ जी, क्लियर है। इस टिल्टेड रेक्टेंगल की सेंट्रोइडल एक्सिस कहां पे होती विद रिस्पेक्ट टू दिस एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम। हाँ जी, क्लियर है ये। यस सर, यस। मान लो अब मैं इसको इस तरह से कर देता हूं, ये हो गया मेरे पास y डैश, या इसको मैं बोल दूं L, और ये बोल दूं M। अब मुझे बताओ M एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग इसकी सेंट्रोइडल एक्सिस किस डायरेक्शन में होगी, ये so this CC dash is parallel to M axis now, and this CC dash was parallel to this X axis। तो यहां पे भी आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम आप ये वाला चूज कर रहे हो, तो आप इसके अबाउट ही लोगे ना, इस एक्सिस के अबाउट, फ्री सरफेस के अबाउट थोड़ा ना लोगे। सो दिस विल बी द डिस्टेंस LC, और सेंट्रोइडल एक्सिस इस एक्सिस के पैरेलल होगी, अब इस एक्सिस के पैरेलल नहीं है, क्योंकि आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम ये चूज किया हुआ है ओनली फॉर सिंप्लिसिटी, क्योंकि आपका जो प्लेट है वो इस डायरेक्शन में है, तो हमेशा ये अच्छा रहता है कि आप उसी डायरेक्शन में एक एक्सिस ले लें और एक उसके परपेंडिकुलर एक्सिस ले लें, ताकि एनालिसिस सिंपल हो जाए। हाँ जी, क्लियर है। हाँ जी, क्लियर है कि नहीं। यस सर। So this was all about inclined surfaces, and last one is forces on submerged curved surfaces। तो यहां पे भी दो तरह के curved surfaces हैं। This surface is submerged, इसके ऊपर liquid है, और यहां पे इसके क्या है, एयर है, यहां भी एयर है। इस केस में क्या हो रहा है, यहां पे एयर है, और क्या है, यहां भी एयर है, लेकिन जो ये सरफेस है इसके नीचे लिक्विड। हाँ जी, क्लियर है। सो दीज कैन ऑल्सो बी ट्रीटेड इन सिमिलर फैशन। सो नाउ आई एम कमिंग टू फोर्सेज ऑन कर्व्ड सरफेसेस। इसका सर अगर सर हाँ। सर अगर हम सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं फ्री सरफेस के अबाउट सॉरी, अगर हम मान लेते हैं कि जो हमारा वो है सेंटर ऑफ प्रेशर है, उसकी डिस्टेंस अगर हम फ्री सरफेस से लेते हैं, अगर हाँ, इन केस अगर ले लेते हैं, मान लो सर हमने उससे निकाल दिया फॉर्मूला, सेंटर ऑफ प्रेशर फ्री सरफेस से ले लिया, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हम फाइंड करेंगे तब तो फ्री सरफेस के अबाउट कर सकते हैं ना। हाँ, लेकिन फिर आप क्या करोगे, आप फिर ऐसे लोगे, फिर आप ऐसे लेते हैं ना, आपका ये हो जाता है रो जी वाई डी ए, ऐसे लेते हैं आप, तो आपका ये वाई सी आ जाता, तो आप लिख देते रो जी ए वाई सी, और फिर वाई पी के भी लेते हैं तो ऐसे ही लेते, तब आप फ्री सरफेस के ही लेते, तो आप वाई पी आता फिर आपके पास। हाँ जी, क्लियर है। यस सर। लेकिन वो आपको फिर आप इसमें इसलिए कन्वर्ट कर रहे हो क्योंकि आपको हमेशा लेंथ ऑफ प्लेट गिवन होगी ना,
तो सर लेंथ ऑफ प्लेट का सेंट्रॉइड निकाल के उसकी वर्टिकल डिस्टेंस ले लेंगे। तो हाँ, प्लेट की वो लेंथ है भी कर सकते हो निकाल आप, के लेंगे। वो भी कर सकते हो, उसमें कोई डाउट नहीं। यू कैन ऑल्सो डू लाइक दैट कि आप इसका पहले वो निकालिए, इसका सेंट्रॉइड निकालिए, उसका फिर सिमिलर ट्रायंगल से ये डिस्टेंस निकाल लीजिए, ये आप डिस्टेंस निकाल सकते हो, देयर इज नो इशू इन दैट। लेंथ वैसे क्वेश्चन में गिवन है सर, मतलब क्वेश्चन जितने भी करे हैं सर ट्यूट में सर, उन सब में गिवन है वैसे। हाँ, तो आप क्या चाह मतलब रहे कि हो आप, वो लोग हाँ, तो आप ये चाह रहे हो कि आप प्रोवाइड कर रहे हैं सर। डील ही ना करो। यस सर। तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आप डिस्टेंसेस को वैसे कन्वर्ट करोगे तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि आप गलती ना करो कोई भी। हाँ जी, क्लियर है? यस सर। यस। So this is how you find out forces on inclined surfaces. Now I'm coming to forces on submerged curved surfaces. तो कर्व सरफेस में जो बेसिक डिफरेंस है बाकी केसेस से, वो कैसे डिफरेंट है कर्व सरफेसेस? कैन यू थिंक अबाउट इट? जब कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस था, इस पे फोर्सेस किस डायरेक्शन में थी? इस डायरेक्शन में। जब वर्टिकल सरफेस था, फोर्सेस थी इस डायरेक्शन में। जब कोई इंक्लाइंड सरफेस था तो फोर्सेस थी इस डायरेक्शन में। और अगर अब कोई कर्व सरफेस हो तो फोर्स किस डायरेक्शन में होगी? दोनों डायरेक्शन में होगी, हॉरिजॉन्टल में भी होगी, वर्टिकल में भी होगी। वो तो इस केस में भी है, इसके भी दो कंपोनेंट है। इन 3 केसेस में क्या कॉमन है और ये फोर्स से कैसे डिफरेंट है? इसमें डायरेक्शन चेंज हो रही है बार बार सर पहले 3 में सर वो है सर पैरेलल सिस्टम ऑफ constant slope। फोर्सेस है, इसमें डायरेक्शन चेंज कर रही है। यानी क्लियर है? सो डायरेक्शन इज चेंजिंग एवरी टाइम इन केस ऑफ कर्व्ड सरफेस, और बाकी जो 3 केस किए थे आपने, इसमें डायरेक्शन चेंज नहीं कर ली। दीज आर पैरेलल सिस्टम ऑफ फोर्सेस। और ये क्या होंगे? दीज विल बी कंकरेंट सिस्टम ऑफ फोर्सेस। तो इनके लिए आपने एक, यू नीड टू रिमेंबर दिस theorem, that is when a body is held in equilibrium by 3 non-parallel forces, 3 or more non-parallel forces, they must be concurrent, that is the line of action intersect at the common point and they are coplanar. तो ये चीज का हम ध्यान रखेंगे, क्योंकि इस केस में फोर्स की डायरेक्शन हर बार चेंज हो रही है लोकेशन के साथ। पिछले सारे केसेस में डायरेक्शन सेम रह रही थी, चाहे मैं कोई भी लोकेशन चूज कर रहा था। सो दिस इज द फंडामेंटल डिफरेंस इन ट्रीटिंग कर्व सर्फेसेस। यानी क्लियर है? सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन अप्लाई द सेम फॉर्मूला, लेकिन उसमें इंटीग्रेशन थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है। So there is an easy way to do that, and we will be following that. So this is any arbitrary curved surface. तो ये कोई भी arbitrary curved surface है, इस पे आपने फोर्सेस पता लगानी है कि इस पे फोर्स क्या लग रही है। तो ये सारा फ्लूइड जो है वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब कोई भी इसका चंक उठा लूं कहीं से भी, it will be also be in static equilibrium. तो कर्व सरफेसेस को ट्रीट करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? जहां से कर्व सरफेस स्टार्ट हो रहा है वहां से आप प्रोजेक्शंस बना दीजिए, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। तो जो ये चंक बनेगा ऑफ फ्लूइड, आप इसको एज फ्री बॉडी डायग्राम बना के इसको एनालाइज कीजिए। तो फर्स्ट स्टेप क्या हुआ?
जो कर्व सर्फेसेस के एंड पॉइंट्स हैं उनसे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सर्फेसेस बना लीजिए, एंड वॉट एवर वॉल्यूम यू आर एबल टू आइसोलेट carry out, and that forms the free body diagram, and that forms the system. This is the system now. तो इसको बस एनालाइज कीजिए, that is sum of all forces on this should be equal to 0, और फाइनली आपका आंसर आ जाएगा. So if I ask you what is the value of Fy, what is the value of Fy, कैसे फाइंड आउट करेंगे? How will you find out Fy? So I will mark these points, say this is H1, and here it is P atmospheric, atmosphere is there, here also P atmosphere is there. Here P atmospheric is also acting from outside. So this is H1, say this is H2. So what will be the value of this Fy? What will be the value of this Fy? Rho G H1 into area of AB. Rho G Yes, sir. H1 into area of AB. area of AB. So this is area of AB. तो मैं इसमें पी एटमॉस्फेरिक ऐड भी कर सकता हूं, अगर यहां ऐड करूंगा तो मुझे यहां भी ऐड करना होगा, ठीक है? सो आई एम लीविंग दिस पार्ट, सो आई एम नॉट ट्रीटिंग पी एटमॉस्फेरिक एज ऑफ नाउ. आई कैन काउंट फॉर दिस, इट विल गेट इवेंचुअली कैंसल्ड आउट. तो ये हो गया Fy की वैल्यू, ठीक है? तो Fy आपको पता चल गया. नाउ व्हाट विल द वैल्यू ऑफ दिस Fx? हाउ विल यू फाइंड ऑफ Fx? एलिमेंट लेके सर. तो बेसिकली आप क्या मान सकते हो, इसको आप एक वर्टिकल प्लेट ही एज्यूम कर लीजिए. आप समझ गए? सो दिस इज लाइक अ वर्टिकल प्लेट विच इज एट अ डिस्टेंस h1 फ्रॉम द फ्री सरफेस. तो इस पर रिजल्टेंट फोर्स हमने निकाली थी वर्टिकल प्लेट्स में, क्या होती है? रो जी what? Area BC into what? What should I write down? If there is a vertical plate submerged, सेंट्रोइड. centroid. Centroid किसका? इस fictitious plate का. प्लेट का. तो इसका centroid इसका ले लेंगे हम. मान लो ये डिस्टेंस H1 प्लस H2. यहाँ पे मान लीजिए मैं ऐसे कुछ होता है, इसको H3 मान लेता हूँ, ये सेंट्रॉइड होता है. H1 प्लस H3. तो यहाँ पे मैं लिख देता H1 प्लस H3. तो ये Fr किसके बराबर होती? Fx के. हाँ जी, क्लियर है? कोई डाउट? और ये कहाँ पे एक्ट कर रही होती? YP पे. YP भी मैं निकाल सकता हूं. हाँ जी, क्लियर है? YP will be YC plus ICC upon AYC. तो ये जो लोकेशन है जहां पे एक्ट कर रही है, सेंट्रॉइड नहीं है, सेंट्रॉइड उसका यहां कहीं होगा, और ये सेंटर ऑफ प्रेशर है, ये वाला पॉइंट जहां पे ये Fx एक्ट कर रही है. हाँ जी, किसी को कोई भी डाउट? तो मैंने दो फोर्सेस को अकाउंट फॉर कर लिया. एक केस में हॉरिजॉन्टल प्लेट की तरह एनालिसिस किया और एक में वर्टिकल प्लेट की तरह एनालिसिस किया. सर बस एक छोटा सा डाउट आ रहा है सर. हाँ जी, बताइए. सर जो आपने सर अभी बताया था ना कि फ्री सरफेस वाला की मोमेंट ऑफ देते हैं मतलब हम, तो सर उसमें मतलब सर अगर जैसे मान लो सर स्क्वायर है मतलब, या चलो रेक्टेंगल ले लेते हैं, तो सर रेक्टेंगल में सर जो हम निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो सपोज हम सेंट्रोइडल एक्स के अबाउट निकाल रहा हूँ मैं. नहीं, तो सर वर्टिकल वो, प्लेट में. हाँ सर
इंक्लाइंड प्लेट में सर, इंक्लाइंड प्लेट की बात कर रहा हूँ सर। इंक्लाइंड इंक्लाइंड में जैसे मान लो अब ये है एग्जांपल मैं बोल लूं, यहाँ पे मैं बना रहा हूँ आपको, मान लीजिए ये वाली रेक्टेंगल हो गया, जैसे ये समझ रहे हो, इसको मैंने, ये रेक्टेंगल हो गया, तो इसमें किस एक्सिस के अबाउट करोगे आप? सेंट्रोइडल एक्सिस में कौन सी है? सर यही है, यही है। क्लियर है? यस सर। तो इसको अगर मैं ऐसे बनाऊं, बेसिकली इसका मैं फ्रंट व्यू बनाऊं या इस नहीं साइड, सर मैं कह रहा हूँ कि अगर आप इंक्लाइंड प्लेट बनाओ, एक इंक्लाइंड प्लेट, ये इंक्लाइन प्लेट ही है ना? सर वैसे बनाओ मतलब कि जैसे उसमें हाँ, आपने ऊपर दिखा था डायग्राम में, हाँ ऐसे ठीक ऐसे है, बनाओ जरा। ठीक है, ये फ्री सरफेस हो गया। अगर मैं इसका ऑक्सिलरी टॉप व्यू बनाऊं, इस प्लेट का ऑक्सिलरी टॉप व्यू समझते हो आप, इस डायरेक्शन से देख रहा हूं, तो ये ऐसे बनेगा। क्लियर है? इसको मैं ऐसे बना दूं ए बी सी डी, तो ये बेसिकली ए बी सी डी हो गया। क्लियर है? यस सर। अब सर इसका वो निकालना है, मालूम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट द फ्री सरफेस। अबाउट फ्री सरफेस क्यों निकालना है आपने? आपने फ्री सरफेस पे निकालना है। यस सर। तो कैसे निकालोगे? तो आपको एलिमेंट चुनना पड़ेगा। ये फ्री सरफेस है, यहां पे एक एलिमेंट चुनोगे। जैसे आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है कि आप ये एलिमेंट एक वाई डिस्टेंस पे ले लोगे, फिर आप कहोगे वाई स्क्वायर डी ए का इंटीग्रल, ठीक है ना? अब डी ए क्या बेसिकली डी एक्स डी वाई। अगर यहां पे मैं इसको ऐसे मान लूं कि ये डी एक्स था और ये डी वाई था, तो डी एक्स इंटू डी वाई। तो आपको एलिमेंट कैसे लोगे आप? जब रेक्टेंगल में आप ऐसे रेक्टेंगल होता था, आपको याद होगा, आप ऐसे ले लेते थे सिंपल, ये डी वाई ले लेते थे और ये बी थिकनेस इसकी विड्थ होती, तो आप बी डी वाई ले लेते थे डी ए को, और सिंपल आप वाई स्क्वायर डी ए होता था जब, तो आप करते थे वाई स्क्वायर इंटू बी डी वाई, सॉरी हाँ बी डी वाई इंटीग्रल। तो ये बी बाहर आ जाता था, वाई स्क्वायर डी वाई वाई क्यूब बन जाता था अपॉन 3, और ये वेरी करता था फ्रॉम माइनस डी बाई टू टू प्लस डी बाई टू, तो आपका बी डी क्यूब बाई 12 आंसर आ जाता था। तो उसमें आपको डीए को आप बड़ी कन्वीनियंटली इस तरह से लिख देते थे बी इंटू डी वाई, लेकिन इस केस में आपको बहुत डिफिकल्टी होगी उसको लिखने में। आप समझ रहे हो बात? अगर आप इस एक्सिस के अबाउट लेते तो आप ये वाला सेम एनालिसिस कर पाते, क्योंकि आप उस टाइम पे फिर ऐसे ले लेते सिंपली कि आपने रेक्टेंगल था, आपने एक एलिमेंट लिया यहां पे ऐसे, इसकी थिकनेस मान लो dl थी और इसकी विड्थ मान लो b थी, तो ये एरिया हो गया बेसिकली BDL। और आपको पता है एल स्क्वायर डी ए आपने करना फाइंड आउट, तो एल स्क्वायर इंटू बी डी एल इंटीग्रल, तो ये हो जाता माइनस एल बाई टू से प्लस एल बाई टू, तो ये आराम से आ जाता बी एल क्यूब बाई 12। हाँ क्लियर है? Yes, sir. यस सर, यस सर। So for this chunk of mass, horizontal plate आप assume कर सकते हैं पहले, फिर vertical plate assume कर सकते हैं, तो fx और fy निकाल सकते हैं, fx और fy। अब आपके पास सिर्फ ये सरफेस रह गया, इस पे अननोन है आपको। हाँ जी, हेलो। So I have exceeded time, sorry. So तो आपकी क्लास है अभी कोई? हेलो हेलो। Yes, sir. So do you have class just after this class, or we can do it for next 5 minutes to complete this? Yes, sir. Can we do?
Can you finish this off in next 5 minutes? हाँ जी, 5 मिनट में कर दें इसको। जी सर, जी सर, ठीक है सर। खत्म कर दिया सर। ठीक है, तो इस सरफेस पे ये तो आपकी, ये पहले बताइए एफ एक्स और एफ वाई कौन सी फोर्सेस हैं सरफेस की बॉडी? ये कौन सी फोर्सेस हैं? सरफेस सरफेस फोर्सेस। कोई बॉडी फोर्स लग रही है? वेट वेट ऑफ दिस लिक्विड। अब इस पे कोई भी रिजल्टेंट फोर्स लग रही है एफ आर, दैट इज आई हैव टेकन रिजल्टेंट ऑफ ऑल दीज कंपोनेंट फोर्सेस, तो इसका एक एक्स कंपोनेंट होगा, एक वाई कंपोनेंट होगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं? नाउ ट्राई टू सी। जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा एफ एच, वो किसको बैलेंस कर रहा होगा? इस एफ एक्स, इसको, एफ एक्स को। सो एफ एच इज बैलेंस बाय एफ एक्स। यानी क्लियर है? और एफ वी, दैट इज द वर्टिकल फोर्स बाय द सरफेस, विल बी बैलेंस बाय व्हाट? एक तो एफ वाई ये वाला, और इस केस में वेट किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो दिस विल बी एफ वी विल बी इक्वल टू एफ वाई प्लस डब्ल्यू। यानी क्लियर है? It can come out to be negative. I will discuss that in the next lecture. But in this case, FV is coming out to be Fy plus W. किसी को कोई भी डाउट? Any doubts to anyone? तो ये रिकवर्ड वाला थोड़ा दोबारा समझा दो। हाँ जी, फोर्स ऑन सबमर्ज्ड कर्व्ड सरफेसेस एक बार दोबारा समझा दो। फोर्स ऑन सबमर्ज्ड कर्व्ड सरफेसेस एक बार दोबारा समराइज कर दो। स्टार्ट से बता दूंगा आपको। यस सर। तो ये तो समझ आ गया हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सर्फेसेस। यस सर। So this is how it is different. So you don't have planar parallel forces. तो इस केस में Yes, sir. जो फोर्सेस हैं वो डायरेक्शन चेंज कर रही हैं हर बार। तो इसमें मेथड क्या है, और ये मेथड हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के लिए भी वैलिड है। तो आप क्या करते हैं, जहां से कर्व सरफेस स्टार्ट हो रहा है वहां से आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस बना देते हैं। तो यहां पे स्टार्ट कहां से हो रहा है? ए से और सी से। तो ए से सी तक कर्व सरफेस की लेंथ है, तो ए से आपने हॉरिजॉन्टल बना दिया, सी से वर्टिकल बना दिया, और इस चंक को अब हम एनालाइज कर रहे हैं, ये वाला चंक जो है। यस सर। तो ये चंक स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। इसका Yes, मतलब ऑल फोर्सेज ऑन दिस चंक शुड बी इक्वल टू 0। यस सर। तो इस ए बी फेस पे हमेशा नॉर्मल फोर्स ही लगनी है, तो ये एफ वाई लगेगी। तो एफ वाई यस सर। तो क्या लगेगी? बेसिकली ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेट की तरह ही हो गया, जो डिस्टेंस यस सर। किसी H1 पे है, तो इस पे फोर्स हो जाएगी रो जी H1 इंटू एरिया ऑफ ए बी। यानी क्लियर है? सर सर एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं कंसीडर होगा उसमें? आप एटमॉस्फेरिक कर सकते हैं, अगर यहाँ पे करेंगे तो फिर यहाँ पे भी होगा, तो वो फिर कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैं इंक्लूड नहीं कर रहा। अच्छा अच्छा, ओके सर, ओके सर। तो एफ एक्स है जो इस प्लेट पे लग रहा है बीसी पे, इसको मैं वर्टिकल प्लेट मान सकता हूं। यस सर। और वर्टिकल प्लेट पे आपको पता है क्या है? रो जी ए इंटू वाई सी। यस सर। वाई सी क्या होगा? इसकी सेंट्रॉइड का फ्री सरफेस से डिस्टेंस। यस सर। और ये एक्ट कहां पे करेगा? सेंटर ऑफ प्रेशर पे। ये सेंट्रॉइड पे एक्ट नहीं करेगा, वो सेंटर ऑफ प्रेशर पे एक्ट करेगा। ठीक है, तो ये हो गया इस फेस के लिए, इस फेस के लिए। ये होगी सरफेस फोर्सेस ऑन ए बी एंड बी सी। अब Yes, sir. बॉडी फोर्स कौन सी लग रही है इस एलिमेंट पे? वेट। वेट ऑफ दिस पार्ट ऑफ लिक्विड। यस सर। तो ये हो जाएगा इसका वेट,
डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और इस फेस पे जो ये कर्व फेस है इस पे हमेशा परपेंडिकुलर फोर्स लग रही है। यस सर। हमने इन फोर्सेस का एक रिजल्टेंट मान लिया जो एफ आर है। एफ आर का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और एक वर्टिकल कंपोनेंट यस होगा। सर। क्लियर है? तो हॉरिजॉन्टल को मैंने एफ एच लिख दिया, वर्टिकल को मैंने एफ वर्टिकल लिख दिया। तो एफ एच को कौन बैलेंस कर रहा है? ये एफ एक्स। वर्टिकल को कौन बैलेंस कर रहा है? एफ वाई और डब्ल्यू। एफ वाई और डब्ल्यू। तो एफ एच और एफ वी आ जाएगा आपके पास। यस सर। So Fr, that is the resultant force on this curved surface, will be equal to what? Fh square plus Fp square under root. यस सर। Clear है? यस सर। Any doubt to anyone? सर ये सेंटर ऑफ प्रेशर जो होता है हमें गिवन होता है, निकालना होता है। ये निकालना होगा। ये वाईपी वर्ड से ही निकलता है ना सर सेंटर ऑफ हाँ, प्रेशर। ये आप इसको ऐसे निकालेंगे Yp is equal to Yc plus यस सर। Icc plus A upon Yc. Sorry, I upon अब यस सर। तो ये वाईपी हमारा सेंटर ऑफ प्रेशर होगा। हाँ, सेंटर ऑफ प्रेशर है। और इसमें फायदा क्या होगा आपको? मान लो सेंटर ऑफ प्रेशर नहीं भी निकालना, आप इसको कर सकते हो टैकल। अगर सेंटर ऑफ प्रेशर नहीं भी निकालना तो इस थ्योरम को आप यूज करेंगे कि वो कंकरेंट होती हैं फोर्सेस। कंकरेंट का मतलब क्या हुआ? ये फोर्स क्या होगा? ये जो फोर्स एक्ट कर रही होगी एफ वाई, ये एफ आर एक्ट कर रही होगी, ये सारी एक्ट कर रही होगी, एक पॉइंट पे मीट करेंगे। यस सर। You can find out by that method as well because they will be concurrent. So any doubts to anyone? Otherwise I will break for today and